Hello my dear lovely students, welcome back to your class. My dear students, I will not teach you today. आज मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद बोर हो गई हूँ और मुझे लगता है आप लोग भी बोर हो गए होंगे. Got it? So what we will do now? आज हम क्या करेंगे? See my dear students, today we will do some activity. Got it? आज हम क्या करेंगे? आज हम अपनी एक्टिविटी बुक का कुछ एक्टिविटीज करेंगे. सी योर एक्टिविटी बुक पेज नंबर 81. ये आपकी बुक एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 81 है ना? गॉट इट? सो वी विल डू सम एक्टिविटी बिकॉज वी हैव स्टडीड अ लॉट. हमने पढ़ाई बहुत कर ली, अब हम करेंगे कुछ एक्टिविटी. थोड़ा सा गैप चाहिए ना स्टडीज के बाद, है ना? So today we will do some activities. Now we will see what is the question. The pictures below shown place in a neighborhood. Name the picture in the space provided. यहाँ पर कुछ neighborhood मतलब अपने घर के आसपास की पिक्चर्स दी हुई है और हमें उसका पिक्चर्स के नेम्स लिखना है. We have to write the pictures name in the space provided. मतलब देखिए यहाँ पर स्पेस दी हुई है ना, यहाँ पर हमको पिक्चर्स के नेम्स लिखना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर? टेल मी द नेम ऑफ द फर्स्ट पिक्चर. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पिक्चर? सी द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ पुलिस स्टेशन. सो व्हाट यू विल राइट हियर? हमारा पहला पिक्चर कौन सा है? पुलिस स्टेशन का है. तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट So we will write here police station. Now see the second picture. What is the second picture? The second picture is of post office. In post office what you do? We post letters. Post office में हम क्या करते हैं? हम letters, money orders post करते, send करते. So the second picture is of post office. Got it? Now we will see our third picture. I don't think so you like the third picture. मुझे नहीं लगता है आपको थर्ड पिक्चर पसंद आएगा क्योंकि थर्ड पिक्चर है हॉस्पिटल का. See what is the third picture? The third picture is of hospital. Nobody likes hospital at all. I also don't like hospital. So our answer of third question is hospital. So we will write hospital. Now, after writing the third answer, what is the fourth picture? The fourth picture, see what you can understand in the fourth picture. Fourth picture कहाँ की है? देखिए, आप अच्छे से देख के बताइए. हमारा fourth picture है, it is about railway station. And what you do at railway station? Railway station पे आप क्या करते हो? पतंग उड़ाते हो? No. What we do on railway station? We book a ticket. We get the tickets from railway station and we go by trains to our destination. मतलब रेलवे स्टेशन में हम टिकट्स बुक करते हैं, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन्स आती है और ट्रेन्स में बैठ के हम अपनी डेस्टिनेशन यानी अपने अपने प्लेस पे जाते हैं. सो आवर फोर्थ पिक्चर इज ऑफ what is the fourth picture? The fourth picture is of railway station. Now my dear students, see your fourth picture. What is the fourth picture? The fourth picture is of bank. And in bank what you do? हम बैंक में क्या करते हैं? In the bank we deposit or withdraw our money. मतलब बैंक में जाके हम पैसे को सेव कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम या जब अपने को पैसे की रिक्वायरमेंट है तब हम पैसे निकाल सकते हैं. गॉट इट? सो फोर्थ पिक्चर इज ऑफ बैंक.
Now see our fifth picture. I think you like the fifth picture. मुझे लगता है आपको fifth picture पसंद आता है, क्योंकि fifth picture हमारा कौन सा है? See, our fifth picture is of school. Do you like school? I think you like school. I also like school very much. So our fifth picture is of school. हमारा fifth जो picture है वो school का है. So we will write school. Now our sixth picture. See our sixth picture. What is the picture about? The picture is about park. You like the park now? So in park, what are you doing? You are playing different kinds of games in the park. Park में हम क्या करने जाते हैं? हम गेम खेलने जाते हैं. तो हमारा sixth picture है park का. So here, my dear students, we have completed our activity. Got it? Now see, my dear students, your page number 82. See your page number 82 of activity book. See, this is your today's homework. ये आपका आज का homework है. अब इसमें आपको क्या करना है? You have to write a body building food, protective food and energy giving food. मतलब यहाँ फ्रूट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं. अब इसमें से आपको लिखना है कि इसमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है, कौन सा प्रोटेक्टिव मतलब हमें जर्म से बचाता है प्रोटेक्टिव फूड है, और कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है. ओके, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क. नाउ वी विल सी आवर पेज नंबर 83. गॉट इट? एंड व्हाट इज दैट? देयर इज क्लासिफिकेशन. Now what do you mean by classification? Classification का मतलब क्या? Classification का मतलब है जैसे कि क्लासेस में जैसे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते, बॉयज़ गर्ल्स, है ना. ये क्लासिफिकेशन हो गया. अलग अलग करना, बॉयज़ को अलग कर दो, गर्ल्स को अलग कर दो. तो गर्ल्स का क्लासिफिकेशन और बॉयज़ का क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरीज. ठीक है, समझ में आया? अब हमें यहाँ क्या करना है? पुट द वर्ड्स इन द राइट कॉलम. मीन्स यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं अलग अलग चीज़ों के. हमें क्या करना है? उनको अलग अलग कॉलम में लिखना है. सी, कॉलम्स आर गिवन लाइक दिस. रोडवे. रोडवे मतलब रोड के रूट में, जो रोड से जाता है व्हीकल उसमें. वाटरवे, जो पानी पे जाता है उसको बोलते हैं वाटरवे. पानी पे क्या चलता है? शिप, बोट, सबमरीन, ये सब पानी में चलते हैं. तो हमको यहाँ पानी पे जो चलता है उस पर हम ये कॉलम में नेम्स लिखेंगे. एंड द लास्ट इज एयरवेज. एयरवेज मीन्स जो हवा में चलता है, जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन. गॉट इट? तो हम वो कहाँ लिखेंगे? कौन से कॉलम में लिखेंगे? एयरवेज के कॉलम में लिखेंगे. और क्या क्या है हमें कैसे पता चलेगा? सी, नेम्स आर गिवन ओवर हियर. यहाँ पर नेम्स दिए हुए हैं ऊपर में, तो हमें देख के उसको अलग अलग कॉलम्स में लिखना है, उसको क्लासिफाई करना है. गॉट इट? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. अब नाउ वी विल सी. फर्स्ट इज अ रॉकेट. फर्स्ट हमारा क्या है? अ रॉकेट. तो रॉकेट कहाँ चलता है? पानी में, वाटर में चलता है रॉकेट, या रोड पे चलता है? नो, वह रॉकेट ऑलवेज फ्लाई ऑन एयर. सो वी विल राइट हियर रॉकेट, क्योंकि रॉकेट कहाँ चलता है? हमेशा हवा में उड़ता है. सेकेंड इज एन एरोप्लेन. अब एरोप्लेन कहाँ? पानी में चलता है? नो, एरोप्लेन ऑल्सो इन एयरवेज, क्योंकि एरोप्लेन भी हवा में उड़ता है. तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? हम उसको एयरवेज में लिखेंगे, मतलब यहाँ. गॉट इट? अंडरस्टूड? थर्ड इज अ शिप. अब शिप कहाँ चलता है? रोड पे, हवा में या पानी में? यस माय डियर स्टूडेंट्स, अ शिप ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर. शिप हमेशा पानी पे चलता है. तो हम कहाँ लिखेंगे शिप को? वाटरवे में.
नेक्स्ट इज अ मोटर कार। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ मोटर कार मतलब कार कहाँ चलती है? हवा में, पानी में? नो, द कार ऑलवेज रन ऑन रोड, सो वी विल राइट हियर मोटर कार, क्योंकि मोटर कार हमेशा रोड पे चलता है। अब मोटर कार के बाद क्या है? स्कूटर। स्कूटर, वेयर स्कूटर इन वाटर, इन एयर और ऑन रोड, ऑन रोड। सो स्कूटर हमेशा रोड पर चलता है, so we will write scooter on roadways. Next is a boat. अब बोट कहाँ चलती है हमारी? रोड पे? नो, बोट ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर, so we will write boat on waterway. नेक्स्ट इज हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है? पानी में? नो, हेलीकॉप्टर इन एयर, हवा में। तो हम हेलीकॉप्टर को कहाँ लिखेंगे? इन एयरवेज। नाउ आवर लास्ट इज बस। अब बस कहाँ चलती है? रोड पे, तो बस को हम कहाँ लिखेंगे? रोडवे में। So here my dear students, we have completed our this activity classification. अब समझ में आया क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? जो रोड पे चलता है उसको रोड वाले कॉलम में लिखना है, जो वाटर पे चलता है उसको वाटर वाले कॉलम में लिखना है, और जो एयर में चलता है उसको एयर वाले कॉलम में करना है। मतलब क्लासिफिकेशन डिवाइड करना है कि एयर में क्या चलता है, वाटर में क्या चलता है और रोड पे क्या चलता है। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। गॉट इट? Now we will see our next. Now my dear students, our second question is we have to divide the colors, flowers और vegetables. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड किए थे वाटरवेज, एयरवेज और वाटरवे में, सॉरी रोडवे में, अब हमको क्या डिवाइड करना है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और कलर्स। मतलब वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर के नाम दिया हुआ है, हमको उसको क्लासिफिकेशन मतलब वेजिटेबल को वेजिटेबल के कॉलम में लिखना है, फ्रूट्स को फ्रूट्स के कॉलम में लिखना है, फ्लावर्स को फ्लावर्स के कॉलम में लिखना है और कलर्स को कलर्स के कॉलम में लिखना है। गॉट इट? नाउ फर्स्ट आर इज पिंक। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पिंक? पहले हमारा है पिंक। अब पिंक क्या है? कलर है, तो हम कहाँ लिखेंगे? कलर के सेक्शन में। गॉट इट? और सेकेंड इज लोटस। अब लोटस मतलब क्या? लोटस क्या है? कोई वेजिटेबल है? नहीं, इट इज अ फ्लावर, सो वी विल राइट इन द सेक्शन ऑफ फ्लावर लोटस। और नेक्स्ट इज ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब बैंगन। अब बैंगन क्या है? कलर है, फ्लावर है कि वेजिटेबल है? नो, ब्रिंजल इज वेजिटेबल, सो वी विल राइट ब्रिंजल इन वेजिटेबल्स कॉलम। ब्रिंजल एक वेजिटेबल है, तो हम ब्रिंजल को वेजिटेबल के कॉलम में लिखेंगे, सो वी विल राइट ब्रिंजल इन वेजिटेबल। नेक्स्ट इज येलो। एंड व्हाट इज येलो? येलो मतलब क्या? येलो एक फ्रूट है? नो, इट इज अ नेम ऑफ अ कलर, सो वी विल राइट इन कलर सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रोज। रोज मतलब क्या? गुलाब का फूल, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? फ्लावर्स के सेक्शन में। हियर। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन? ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन वेजिटेबल? नहीं, ग्रीन कलर, तो हम उसको लिखेंगे कलर के सेक्शन में। नेक्स्ट इज मैंगो। एंड
मैंगो मीन्स इट इज अ नेम ऑफ अ फ्लावर. मैंगो किसका नाम है? फ्लावर का नाम है? नो, मैंगो इज द नेम ऑफ अ फ्रूट. सो वेयर यू विल राइट फ्रूट्स नेम? इन फ्रूट सेक्शन, इन फ्रूट कॉलम. Here it is mango. Now my dear students, our next word is onion. Onion मतलब प्याज. तो प्याज क्या हो गया? हमारा वेजिटेबल हो गया. तो हम कहाँ लिखेंगे? वेजिटेबल में. Our next is pineapple. So pineapple is a fruit. So we will write in fruits column pineapple. Our next is lily. And lily का मतलब it is a flower. lily एक flower है. तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? flowers वाले कॉलम में. Our next is radish. Radish means, radish का मतलब क्या है? मूली. तो मूली क्या हो गई? वेजिटेबल. So we will write radish vegetable. Our last is banana. And what do you mean by banana? Banana क्या हो गया? फ्लावर है banana? नहीं, banana हमारा फ्रूट है. तो हम कहाँ लिखेंगे? फ्रूट में. So here my dear students, we have completed our today's activity. हमने अपना आज का एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है. So I hope you all have understood it. Okay, so here we have completed our today's activity. So complete your copy, do your homework regularly, daily. It's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy. Don't trouble your parents, don't disturb your parents. I'll see you soon. Bye bye.